Hello everyone, welcome to Kids English online classes. This is your basic lecture number 3 and we have first you have to see all the 3 lectures before going to the portion. Okay, so today we are going to start with preposition and conjunction. We have already done with noun, pronoun, verb, adverb, parts of speech. We are going through adjectives. We have in the last lecture we have studied about adjective. Now today we are going to study about preposition and conjunction. Before starting preposition and conjunction, we will start with the basic, that is read the words. Read the words. Now your first word is glorious. 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 Your second word is gorgeous. 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 Third is confidence. 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 Residence. Residence. Superstitious. Super. Stitious. Superstitious. Assistant. 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 Seventh is decision. 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 Technician. 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 Symmetry. 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 Efficient. 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 Injuries. Injurious. Injuries. Abundance. 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 Presidential. 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 Curious. 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 Courageous. 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 Now make sure that you have to read all the words from first lecture of basic lecture of English to the third. आपको फर्स्ट से लेके थर्ड तक जो रीड द वर्ड्स दिए गए आप उसको बुक में लिख, इट इज़ ऑलरेडी रिटन इन योर बुक, आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, जस्ट आप उसको साथ में पढ़ेंगे. यू विल रीड फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड टू द लास्ट वर्ड, दैट इज द करेजियस. नेक्स्ट वी विल गो विद द मीनिंग्स. नाउ मैं हर टाइम आपको पैसेज देती थी, दिस टाइम आई विल गिव यू द मीनिंग्स बिकॉज यू रीड द पैसेज. आपको समझ में आ गया कि आप पैसेज किससे रीड करोगे. नेक्स्ट वी विल गो विद द मीनिंग. योर फर्स्ट मीनिंग इज tenure. Okay, one of the first people to develop something. tenure का मतलब क्या है? One of the first people to develop something मतलब पहला person जो कुछ नई चीज़ बनाती है या कुछ नई चीज़ develop करता है. Like first is we can take for example software. जो person ने software बनाया उसको हम क्या बोलेंगे? tenure. Okay, next is road map. A set of instructions. रोड मैप मतलब हमको जो डायरेक्शंस बताता कि हम कैसे वैसे जाए, इंस्ट्रक्ट करता हमको either we should go to the right or we should go to the left, wherever we like to go. जैसे हमको डायरेक्शन मतलब if you want to go to a city like Aurangabad, if you want to go to city from Mumbai to Aurangabad, okay, so road map will help us to go by highway, or you have to take a right, you have to take a left, whatever maybe. road map will give us the instructions. वो हमें instructions देता है कि हमें किस direction में move होना है. Third is affectionately. Affectionately with love means प्यार से एकदम, with politeness, with love. Affectionately with love. Inspire, motivate. वो inspire
मोटिवेट, इंस्पायर, मोटिवेट करना मीन्स किसी को हौसला देना, किसी को ये बताना कि यू कैन डू इट, you have the right, means you have the capacity to do it, means आप कर सकते हैं, and you can be a something very special which you want to become, कि आप कुछ ऐसा बन सकते हैं जो आप चाहते हो, you can do it, you have the capacity, आप कर सकते हो। इसको बोलेंगे हम मोटिवेट करना, मीन्स आगे आगे पहुंचने के लिए पुश करना। फिफ्थ वन इज रिलीफ, relaxed feeling after some pain or disaster. What do you mean by relief? Relaxed feeling मतलब एकदम अच्छी फीलिंग कुछ पेन या डिजास्टर के बाद, डिस्ट्रेस के बाद। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमें लग जाता है, इफ यू गॉट हर्ट, हमें बहुत पेन होता है, पेन होने के बाद हम क्या करते हैं, वी अप्लाई ऑइंटमेंट, हम कुछ दवाई लगाते हैं, दवा मेडिसिन लगाने के बाद हमें वो चीज़ अच्छी फील होती है, रिलैक्स्ड फील होती है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, relief. Okay, we call it as a relief, relaxed feeling after some pain or disaster. So you have to learn this 5 meanings and you have to use this word instead of using the complete sentence. Next is we will start with preposition and conjunction. What is preposition? A preposition is a word that links a noun or pronoun or a phrase to other words in a sentence. Preposition हम किसे बोलते हैं? What is preposition? Preposition का definition क्या रहेगा? Preposition क्या है? एक लिंक है दो वर्ड्स के बीच में, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, फ्रेज हो, या फ्रेज मीन्स लाइक कोट्स हम यूज, थॉट्स हम यूज करते हैं, तो नोन एज फ्रेज। तो ये जो वर्ड्स है, ये लाइक नाउन, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, प्रोनाउन, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। फ्रेज मीन्स एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सो हमें क्या, हमारा फ्रेज क्या है, एन, ए एन, एन, एप्पल, ए डबल पी एल, एप्पल, अ डे, डी ए वाई, डे, keeps the doctor away. Okay, keeps the doctor away. The हमारा क्या हुआ, प्रिपोजिशन हुआ, क्योंकि लोग क्या कर रहा, दो सेंटेंस को एक साथ क्या करा, लिंक करा, ज्वाइन करा, इज नोन एज प्रिपोजिशन। जो वर्ड, जो अल्फाबेट, जो लेटर दो सेंटेंस को ज्वाइन करे, हम उसको क्या बोलते हैं, प्रिपोजिशन। लाइक द कोच वॉज हैप्पी विथ रोहन बिकॉज ही प्लेड वेल। कोच वॉज हैप्पी, हम अगर ये सेंटेंस यहाँ तक रहता, लेट मी रेज इट, लेट्स सी फर्स्ट एग्जाम्पल। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द कोच वॉज हैप्पी। ओके, अगर यहाँ तक रहता, इट्स अ सेंटेंस, द कोच वॉज हैप्पी। ओके फाइन, द कोच वॉज हैप्पी विथ रोहन बिकॉज ही प्लेड वेल। किससे हैप्पी है, विथ रोहन से। किससे हैप्पी है, रोहन से। क्यों हैप्पी है, बिकॉज ही प्लेड वेल, उसने कैसे खेला, उसे बहुत अच्छा खेला, इसीलिए कोच उससे क्या हुए, हैप्पी हुए। तो विथ क्या बताता कि कोच किसके वजह से हैप्पी हुए, रोहन की वजह से। सो इट इज नोन एज प्रिपोजिशन। तो हम इसे क्या बोलेंगे, प्रिपोजिशन। नेक्स्ट सेंटेंस इज माई अंकल ओन्स अ हाउस एट कल्याणपुर इन बिहार। मेरे अंकल ने घर लिया। ओके, उन्होंने घर खरीदा। कहाँ खरीदा, एट कल्याणपुर। कल्याणपुर कहाँ पर है, इन बिहार। अगर हम ऐसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू वन, आई लिव इन हाउस। ओके, आई लिव इन हाउस। तो ये सेंटेंस क्या हुआ, इनकम्प्लीट। ये बता रहा कि आपको आपका घर कहाँ है, आप कौन सी सिटी में रहते हैं, आप कौन सी स्टेट में रहते हैं। नो, इट इज़ नॉट शोइंग यू कि आप कौन सी सिटी या कौन सी स्टेट में रहते। अगर आप देखते हैं, आई लिव इन औरंगाबाद, मैं कहाँ रहती हूँ, आई लिव इन औरंगाबाद। ओके, सो इन इज योर प्रिपोजिशन, बिकॉज अब आप परफेक्टली बताए कि आप कहाँ रहते हैं, औरंगाबाद में। लाइक आई लिव इन हाउस एट औरंगाबाद
in Maharashtra. Where does Aurangabad come? In Maharashtra. Okay. अगर आप ऐसे सेंटेंस बनाते हैं then your sentence will be completed, like you're showing that आप औरंगाबाद में रहते हो. And where is Aurangabad? Aurangabad is in Maharashtra. So this is known as preposition. This at and this in is known as preposition, जो exactly बताता कि आपका लोकेशन क्या है और आपका स्टेट क्या है. Okay. Now third one is she was grateful to her friend. So she was grateful to her friend. वो अपनी फ्रेंड के लिए क्या थी? ग्रेटफुल थी, क्योंकि हो सकता है उसके फ्रेंड ने उसकी हेल्प की. मे बी दे वर अ गुड फ्रेंड, मे बी समथिंग हैपन. हमको एग्जैक्टली नहीं पता ये सेंटेंस हमको किस फ्रेंड के बारे में बता रहा और क्या क्यों कौन सी क्वालिटी है जो फ्रेंड की जिसके वजह से वो लड़की क्या है? ग्रेटफुल है. सो द सेंटेंस इज शी वॉज ग्रेटफुल टू हर फ्रेंड. तो किसके लिए ग्रेटफुल है? वो उसकी फ्रेंड के लिए. माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी. मेरे पेरेंट्स किसके लिए प्राउड है? किससे प्राउड है? मुझसे. ऑफ मी मतलब मेरे से प्राउड है. माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी. आई लिव एट लाजपत नगर इन न्यू दिल्ली. मैं कहाँ रहता? लाजपत नगर. एट लाजपत नगर. इन लाजपत नगर कहाँ पर है? इन न्यू दिल्ली. सो these are the words which the preposition join. ये जो I live, अगर हम ऐसे लिखते I live लाजपत नगर न्यू दिल्ली, it makes sense? No. I live at लाजपत नगर, कि मैं लाजपत नगर में रहता हूँ और जो दिल्ली में है. So it is known as preposition. हम इसे क्या बोलते हैं? We call it as preposition. Next we will go with another example. 6. The man walked towards me. Man walked me. अगर हम इसे लिखते, do we get the sentence? No. The man walked towards me means वो मेरे तरफ walk कर रहा है. It is known as preposition. The magician put the rabbit into the cap on the table. Magician ने क्या किया? Rabbit को into the cap मतलब कैप के अंदर डाला. जो कहाँ था? कैप कहाँ पर रखी हुई थी? On the table. So this is known as preposition. कि exactly आपको पता चल रहा है कि मैजिशियन ने रैबिट को कैप के अंदर डाला और वो कैप कहाँ रखी थी? एग्जैक्टली टेबल के ऊपर. तो हम जब ये सेंटेंस रीड करते, जब हम ये रीड करते हम इमेजिन कर सकते कि एग्जैक्टली टेबल है, कैप है, रैबिट है और एक मैजिशियन है. मैजिशियन ने क्या किया? कैप को टेबल पे रखा, उसके अंदर किसको डाला? रैबिट को. एग्जैक्टली. सो इट इज शोइंग यू द एग्जैक्ट फ्रेज ऑफ द सेंटेंस. वो हमें पूरा कंप्लीट सेंटेंस बता रहा है. मदर लुक आउट ऑफ द विंडो. मदर कहाँ देख रही है? मदर इज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर. द डस्टबिन इज बिसाइड द टेबल. डस्टबिन कहाँ पर है? बिसाइड द टेबल मतलब टेबल के बाजू. द मास्क इज बिलो द पेंटिंग. वेयर इज मास्क? मास्क इज बिलो द पेंटिंग. पेंटिंग के नीचे क्या रखा हुआ है? मास्क. So it is showing you the exact place, exact location of your sentence which you are reading. हमें preposition से क्या पता चलता है कि चीज़ कहाँ रखी हुई है, कैसी है, properly उसमें क्या क्या है. We can find it out very easily with the help of preposition. Next is your fill in the blanks with appropriate preposition. हमें क्या करना है? हमको ये ब्लैंक्स को फिल करना है विथ अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन. अब यहाँ दो प्रिपोजिशन थे, अबाउट, फ्रॉम. ओके. हमको ये दोनों में से जो सूटेबल है वो प्रिपोजिशन ये ब्लैंक में फिल करना है. नाउ फर्स्ट इज ही टोल्ड मी अबाउट हिज एक्सपीरियंस इन हिज नेटिव विलेज. फर्स्ट इज अबाउट, तो हम अबाउट लिखेंगे. नाउ द सेकेंड इज फ्रॉम. He told me from his experience in his native place. So about क्या होगा कि उसका वो एक्सपीरियंस है एंड उसने उसमें से बोला. फ्रॉम मीन्स उसने अभी अभी लेगा. टोल्ड मी मतलब उसने पहले ही बोल दिया. इट्स योर पास्ट टेंस. टोल्ड मी. सो हियर इट विल कम अबाउट. मतलब अगर उसने आपको बोला तो आप थर्ड पर्सन को बोल रहे. लाइक फर्स्ट पर्सन ने आपको, फर्स्ट पर्सन
ने आपको आके बोला तो वो आप हो गए सेकेंड पर्सन, आप सेकेंड पर्सन से थर्ड पर्सन को बोल रहे। सो टोल्ड यू इट मीन्स इट विल कम अबाउट, फर्स्ट आएगा आपका अबाउट। द क्लोन डांस्ड आफ्टर 5 o'clock बिफोर 6 o'clock। ओके, 5 के बाद 6 के पहले। सो आफ्टर एंड बिफोर, दीज आर दी टू प्रीपोजिशन। वी एक्सचेंज गिफ्ट्स इन दिवाली, दिवाली में हम क्या करते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। वी कुड नॉट स्टडी फर्दर, he could not study further dash financial contrast। okay, with regards of, as a result of, it will be as a result of financial constraint। okay, I will stay at aunt's house until 6 o'clock or before 6 o'clock। until मतलब तब तक 6 नहीं बजते मैं आंटी के पास ही रहूँगा, हम ऐसे बोलते हैं, या 6 बजे से पहले तक मैं आंटी के पास रहूँगा। I will stay at aunt's house until it's 6, before 6 o'clock नहीं, until it's 6 o'clock। okay, next is your conjunction। you have to pause the video, आप वीडियो पॉज करेंगे and you will write the fill in the blanks with the options given in the bracket। जो ऑप्शंस आपको ब्रैकेट में दिए हैं आप वो भी लिखेंगे और fill in the blanks उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट विल गो टू द कंजंक्शन। कंजंक्शन आर वर्ड्स यूज्ड टू कनेक्ट सेंटेंस, वर्ड एंड फ्रेज। दे आर कॉल्ड कनेक्टर्स और लिंकर्स। नाउ कंजंक्शन थोड़ा थोड़ा प्रीपोजिशन से सिमिलर है। प्रीपोजिशन क्या करता है कि आई लिव एट लाजपत नगर। ओके, आई लिव एट लाजपत नगर। एट आपका एक छोटा सा वर्ड है जो दो वर्ड्स को क्या, दो डिफरेंट सेंटेंसेस को क्या करता, मैच करता। एट कॉमन। ओके, बट कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन इज योर कनेक्टर और लिंकर्स, जो दो सेंटेंस को क्या करते, कनेक्ट करते एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल इज़ वेरी गुड एंड द टीचर्स आर दी एक्सीलेंट। आप क्या बोले कि स्कूल अच्छे हैं और क्या अच्छा है स्कूल के अंदर, कि टीचर्स क्या है, बहुत, टीचर्स आर एक्सीलेंट। सो दिस इज योर कंजंक्शन। एंड आप उसमें और ऐड करें। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में हम क्या कर रहे थे, वी आर जस्ट एडिंग द साइड वर्ड्स, हम सिर्फ साइड वर्ड्स ऐड कर रहे थे, जैसे एट है, इन है, टू है, ऑफ है, इन है। सो वी आर एडिंग साइड वर्ड्स, हम सिर्फ साइड वर्ड्स ऐड करें। बट हम प्रीपोजिशन में क्या करें, वी आर एडिंग मोर, हम क्या करें, वो सेंटेंस को और हैवी बना रहे। हमने क्या बोले, फर्स्ट एग्जांपल में हमारा क्या है, दिस स्कूल इज़ वेरी गुड, ये स्कूल अच्छा है, और क्या अच्छा है स्कूल में, एंड द टीचर्स आर एक्सीलेंट, और क्या अच्छे टीचर्स। सो वी आर कंजंक्शन में हम कुछ और ऐड कर, मॉडिफाई, इट्स एन एग्जाम्पल, समझो मॉडिफाई कर रहे सेंटेंस को। शुड आई टेक द बस और शुड आई गो बाय एन ऑटो रिक्शा, क्या मैं बस से जाऊँ या फिर मैं ऑटो रिक्शा से जाऊँ। और इज योर कंजंक्शन। ही इज शार्प बट वेरी केयरलेस, मतलब वो क्या है, वो होशियार है लेकिन बहुत ज़्यादा केयरलेस है, मतलब वो केयर नहीं करता। शी वॉज सिक देयरफॉर शी डिड नॉट गो टू वर्क, वो बीमार थी इसीलिए वो कहाँ नहीं जा पाई, शी डिड नॉट गो टू वर्क, इसीलिए वो काम पर नहीं जा पाई। रीना मेक्स फ्रेंड्स इन नो टाइम वेयर एज हर ब्रदर इज शाय, मतलब रीना क्या करती है, आसानी से फ्रेंड्स बना लेती, लेकिन उसका भाई कैसा, एकदम शायफुल, वो जल्दी फ्रेंड्स बनाता क्या, नो। सो वेयर इज योर कंजंक्शन। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग योर ओन वर्ड्स। अब आपको ये सेंटेंस खुद के वर्ड्स डाल के ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेडियम वॉज फुल ऑफ पीपल दो द वेदर वॉज नॉट फाइन। अब मैंने फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखे, वॉट आई हैव रोट, कि स्टेडियम फुल था, फिर
कब फिर भी द वेदर वॉज नॉट फाइन, मतलब वेदर अच्छा नहीं होने के बाद भी स्टेडियम क्या था, फुल था. अगर आप ऐड कर सकते हैं कुछ न्यू डिफरेंट वर्ड लाइक द स्टेडियम वॉज फुल ऑफ पीपल दो इट्स रेनिंग. अब भले बारिश हो रही थी लेकिन स्टेडियम क्या था, फुल था. यू कैन ऐड दिस न्यू वर्ड्स टू इट. He went up the hill although he was hurt. वो हिल के ऊपर चढ़ा, फिर भी उसको क्या था, मतलब उसको लगा था, फिर भी वो क्या किया, हिल के ऊपर चढ़ा. सो आप और ऐड कर सकते हैं इसमें वर्ड्स. He went up the hill although he was tired. वो थक गया था फिर भी उसने क्या किया, हिल के ऊपर चढ़ा. He told her that Agra was an amazing place. He told her that Agra was an amazing place. अब that की जगह कुछ और ऐड नहीं कर सकते. He told her about Agra, या फिर सेंटेंस चेंज कर सकते हैं. I cannot go to school because it is raining heavily. मैं स्कूल नहीं जा पाई, क्यों नहीं जा पाई, because it was raining heavily. So this because is your conjunction. Okay, this because is your conjunction. She will attend office if she keeps well. So if is your preposition. If is your preposition. So वो ऑफिस कब जाएंगी, जब वो अच्छी रहेंगी. when she will feel good, then she will go to the office. Next is your homework part. In homework you will learn and write 20 examples of preposition and conjunction. Learn and write meanings which is given to you, and learn and write words which is all given to you in the first slide. You will write these words, 15 words. You will write the meanings and learn it very properly. Other, you will write the definition also and examples, 20 examples of preposition and conjunction which is already given you in the slide. आप definitions भी लिखेंगे जो आपको slide में दिया गया है. All the students are requested. Here I have given you a note. मैंने आपको यहाँ एक note दी है, आप carefully पढ़ो कि आप लोग जैसे हमारे हम बुक के यू हैव परचेज द बुक. आप सब ने बुक्स परचेज की. आई होप यू हैव परचेज द बुक्स. आपने जैसे ही बुक्स परचेज किए, फर्स्ट यू कंप्लीट दिस 3 लेक्चर ऑफ इंग्लिश, 2 लेक्चर्स ऑफ मैथ्स एंड 1 लेक्चर ऑफ बेसिक साइंस. आप ये तीनों ये लेक्चर्स कंप्लीट करो. उसी के बाद आप लोग फर्स्ट लेक्चर फिर से देखेंगे. when you will see the first lecture, you will keep the textbook in front of you. आपके क्लास वाइज लेक्चर देखेंगे. सपोज फर्स्ट स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेक्चर इंग्लिश का, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर देखेंगे. सेकेंड विल सी द सेकेंड लेक्चर. थर्ड स्टैंडर्ड विल सी द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सेकेंड स्टैंडर्ड इंग्लिश. सो आप लोग ये लेक्चर्स देखेंगे एंड देन you will read the chapter again, and then after that we will put the next lecture of your chapter. आप सबसे पहले आप लोग ये lectures फिर से देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक्स के थ्रू. आप लोग टेक्स्ट बुक्स यूज़ करेंगे बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट टेकन द वर्कशीट. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वर्कशीट नहीं लिए, तो आप लोग सब जिसने वर्कशीट बुक्स लिए, वर्कशीट्स लिए, वो फिर से फर्स्ट लेक्चर देखेंगे. आफ्टर सीइंग द फर्स्ट लेक्चर हम आपको चैप्टर वाइज ही एक्सप्लेन करेंगे. सो वी विल नॉट टीच यू बेसिक. दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ योर बेसिक and I have completed parts of speeches here. After this, you have to go to the first lecture of your according to your textbook. Just see it, and in the next lecture we will start with the textbook only. Okay, thank you and have a nice day ahead.